friendship between Pakistan and China is said to be deeper than the sea, sweeter than the honey, and higher than the peak of Mount Everest. The China-Pakistan Economic Corridor is a proof of this friendship, and Russia-Kai Economic Zone is the gateway project of CPEC. It has been beautifully made, on both sides of which the flags of Pakistan and China have been placed. Between them, the Special Economic Zone is written in English and Chinese languages. The place is very luxurious and beautiful, and a multi-storied building is the administrative office, and on the left side is the warehouse area, which will be used on commercial basis. The work is going on at a fast pace. In the same direction, the enclosure of the Chinese steel factory century begins near the main highway, the first phase of which is being worked on. The construction of the roads in the zone has been completed to a large extent. 10 megawatts of electricity has been provided so that the construction work is not affected. In total, the establishment of station with 120 megawatts of electricity in a short time is an important development. The Ittihad Digital Network team was given a tour of the station and a briefing was given about the zone. In the briefing, the project in charge of the zone, SN Laik, said that Russia-Kai Special Economic Zone is located 97 kilometers from Islamabad and 55 kilometers from Peshawar. The geographical importance of the zone is that it is only 32 kilometers from the dry dock of Nowshera and 166 kilometers from Afghanistan border Torkham, and at the same time it is also close to Punjab, Gilgit and Balochistan. The रशियाई स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन जो है ये सीपेक फ्रेमवर्क का सबसे पहला इकनॉमिक ज़ोन है, इसीलिए इसको कहते हैं रशियाई प्रायोरिटाइज्ड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन। इसके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फर्स्ट फेज़ में है वो कंप्लीट हो चुका है। बिजली यहाँ पे पहुँच चुकी है, गैस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, इंटरनल सीवरेज का जो सिस्टम है वो भी बन चुका है। इंडस्ट्री जो कि अभी हमने 16 अलॉटमेंट्स कर दी हुई हैं, उसमें से 6 इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है अपना, और वो इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट करके और ऑपरेशनल हो जाएंगी। यहाँ पे सर इंडस्ट्रियल स्टेट में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। ग्रिड जो है वो अपना है, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो कंपनी के पास है, वो खुद ही करेगी, अनइंटरप्टेड होगी इंशाल्लाह। गैस का जो प्रेशर है वो भी इंशाल्लाह अनइंटरप्टेड होगा, और पानी का जो इनखला है उसका जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का जो सिस्टम है वो यहाँ लगाया जाएगा कि जितना भी इंडस्ट्री से वाटर वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट करके और वाटर चैनल के अंदर फेंका जाए कि बीमारियाँ और एनवायरनमेंट इससे इफ़ेक्ट ना हो। इसी तरह जो सॉलिड वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, उसके लिए यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया है और इंशाल्लाह लगाया जाएगा, जो कि फ़र्स्ट फेज़ में ही वाक़या है, और वो भी जो है सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करके और फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं जो कि इंटरनेशनली रिनोन्ड हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर भी चल रही हैं, पाकिस्तान में भी चल रही हैं, वो भी आ रही हैं। कुछ चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं, और बाकी जो हैं छोटी जो हैं 6 एकड़ 5 एकड़ वाली 2 एकड़ वाली वो लोकल इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं, क्योंकि वो सारी आपस में एक दूसरे को सपोर्टिंग में होती हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं इंशाल्लाह, और इकनॉमिक ग्रोथ होगी इससे काफ़ी केपी की। Factories worth $128 million will be built on 702 acres of land, while 76 acres of land has been earmarked for commercial plots. The 7-year project has been divided into 3 phases. The first phase is near completion. Russia-Kai Special Economic Zone has been established on the basis of public-private partnership, in which one partner is Chinese company China Road and Bridge Corporation, and the other partner is Khyber Pakhtunkhwa Economic Zones Development and Management Company. In a briefing, it was stated that 91% of the shares in the project will be of China Road and Bridge Corporation and 9% of the shares will be of KP Azman. The development costs will be paid by the Chinese company. The partnership will be for a period of 30 years. $494 million in foreign direct investment is also expected to generate $1.15 billion in annual revenue. There is a possibility of collecting $4.90 billion in direct taxes in the zone. Factories for automobile, mechanical equipment, marble minerals, chemical, cloth, general merchandise, sports goods, electronics, electrical appliances, agricultural commodities and food items will be set up in the zone. हमारे 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन है, और इस 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर एक हमारा प्रायोरिटाइज्ड स्पेशल इकनॉमिक जोन है जो कि रशिया का है।
रशाकई इकनॉमिक जोन जो है ये वाहिद एक प्रोजेक्ट है जिसको हम गेम चेंजर प्रोजेक्ट हम कहते हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है ये टारगेट करेगा हमारा जो एडजेसेंट जो हमारा कार का जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का जो मार्केट है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री अभी तक हाउस हो रही है या होस्ट हो चुकी है या जोन एंटरप्राइज़ को जिनको एडमिशन मिल चुकी है वो ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं ये सारे। और एक बड़ी इनकरेजिंग चीज़ ये भी है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चाइना से आ रहा है जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है उसकी। और रशाकई इटसेल्फ जो है वो जनरेट करेगी राउंड अबाउट 400 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट, जिससे राउंड अबाउट कोई 2.5 लाख लोगों को रोज़गार, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लोगों को रोज़गार मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी ने पिछले 2.5 सालों में 9 कोई इकनॉमिक जोन जो है वो हमने ऑपरेशनल किए हुए हैं, जो अक्रॉस खैबर पख्तूनख्वा है, स्टार्टिंग फ्राम साउथ टिल नॉर्थ। और कुछ इकनॉमिक जोन जो इस साल हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी 4 जोन जो है हम इस साल नए शुरू करेंगे। जो एग्जिस्टिंग जोन्स हैं जो हमारे अभी ऑपरेशनल हैं उसके अंदर डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है और साथ साथ इंडस्ट्री भी लग रही है। तो राउंड अबाउट कोई 296 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी तक जो हमारे इकनॉमिक जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट हम मोबिलाइज़ कर चुके हैं, दैट इज़ 340 बिलियन रुपीज़ की अभी तक इन्वेस्टमेंट अक्रॉस खैबर पख्तूनख्वा डिफरेंट जोन्स के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है। दूसरा जो सबसे प्रायोरिटी हम जिस चीज़ को दे रहे हैं वो ये है कि सेक्टर स्पेसिफिक इकनॉमिक जोन्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें 3 जो है हमारे मिनरल स्पेसिफिक जोन्स हैं, जिसमें 2 मार्बल सिटीज़ हैं और एक साल्ट एंड जिप्सम सिटी हम करक में बना रहे हैं। बुनेर हम अनाउंस कर चुके हैं, इंशाल्लाह करक भी शॉर्टली हम अनाउंस करेंगे। और साथ जो है मोमंद हमारा जो मार्बल सिटी है उसके अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है, बल्कि मोमंद के अंदर भी कोई राउंड अबाउट 14 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हुई हैं। The beautiful building of the administrative office has become operational. It is the most prominent building at time where the facilities of various sectors will be provided to the investors at one place. Plots have been acquired for setting up 16 factories in the zone. Facilitation has been given. The project is being declared as a game changer in terms of development and exports of the province.